Hello everyone, welcome to SciEase. We were doing asexual reproduction, and in asexual reproduction we have completed vegetative propagation. One thing I want to tell you about vegetative propagation is that the plants which grow from vegetative reproduction, they grow faster and they bear flowers and fruits earlier than the plants which grow by this sexual reproduction. And the new plants, they are the exact copies of the parent plant. Why? Because they have grown from a single plant. Later in this chapter, you will learn that the plants which grow from sexual reproduction or grow by sexual reproduction, they have the characters of both the parents. But when they grow by vegetative propagation, or you can say asexual reproduction, they are the exact copies of the parent as they grow from a single parent. Now the next type of the asexual reproduction, that is budding. So in this video, we will study about budding, fragmentation and spore formation. So first is budding. Now yeast, you must have heard yeast. कहाँ पे सुना है ये yeast word? ये हमें केमिस्ट शॉप से भी मिल जाता है, और अगर हम किसी चीज को फर्मेंटेशन उसकी करते हैं, जैसे हमने इडली बनानी है, डोसा बनाना है, तो उसके मिक्सचर को हम रख देते हैं फॉर फ्यू आवर्स ताकि उसमें यीस्ट डेवलप हो जाती है एंड इट मेक्स द थिंग फ्लफी. ठीक है. आप अगर आपने केक भी बनाना है या इडली है, डोसा है, जहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस आता है, वहां पे यीस्ट हम यूज करते हैं. यीस्ट होता क्या है? इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. एक ऑर्गेनिज्म, हमारे में तो कितने ज्यादा सेल्स हैं हमारी बॉडी पूरी में, लेकिन वहां पे एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है. सो यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. How this budding takes place? This is suppose a yeast cell. The small bulb-like projection coming out from the yeast cell, this is known as bud. ये जो ऐसे करके थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंस आ गई है, थोड़ी ग्रोथ हो गई है, इसको हम क्या बोलेंगे? बड. ठीक. ये है न्यूक्लियस. इसमें ये न्यूक्लियस है. अब ये न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा. ओके. और यहां से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो और सेल्स बन जाएंगे. तो हियर यू कैन सी that the bud gradually grows, it will grow gradually and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. तो ऐसे करके अब इसका न्यूक्लियर मटेरियल भी अलग हो गया और फिर यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, ये भी आपस में यहाँ पे जुड़ जाएगा. ठीक है. ये ऐसे करके, अभी तो ऐसे है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ से ऐसे करके ये बन गया और ये सेपरेट हो गया और डिटैच होके ये एक नया ऑर्गेनिज्म यीस्ट सेल बन जाएगा. ठीक है. ये पेरेंट है और इसको हमने डॉटर सेल कह दिया. ओके. मम्मी और बेटी होता है ना, जैसे वो ये पेरेंट है और ये डॉटर सेल. इन सम केसेस आई विल टेल यू दैट समटाइम्स यीस्ट सेल they form chains of buds. एक ये बड निकला, इस बड ने और ज्यादा और बना दिया,
एक और ये सेल बना दिया, छोटा डॉटर, एंड इसने और बना दिया. सो इन दिस वे chain buds, they will be formed, and in very small interval of time large number of the yeast cell they will be formed. I think मैं फिर एक बार बताती हूँ कि yeast एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. ओके, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय बडिंग होती है. बड में कैसे? स्मॉल ग्रोथ दैट विल बी फॉर्म्ड in the yeast cell, then nuclear material that will also separate, okay, that will be elongated first, okay, then this will grow, matures, and it will produce the bud that will be detached from the parent, and sometimes the chains of the buds, they will be formed like in this case. So this is the budding type of the asexual reproduction. Now for this, to see the yeast cell, we will perform one activity. What we will do, that we will take yeast powder from the chemist shop, put this powder in a bowl or a glass full of water, stir it well, and keep it for 1 hour in warm place. What will you see? You will see the yeast cell growing there. How? Yeast cell can be seen only with the microscope. It is single celled and very small. It cannot be seen with the naked eyes. So what you will do? You will take 1 drop from that glass or bowl on a watch glass or on a slide, you can say. Take the drop on the slide and see under the microscope. You will see many yeast cells floating in that drop of water. Now the third type of asexual reproduction, that is fragmentation. You must have seen ponds or lakes covered with the green slimy type of the thing. पता है वो क्या होता है? कभी उसको हाथ लगा के आपने देखा, आप कहते हो ये काई है, जहाँ पे पानी भी गिरता रहता है एवरी टाइम, वहां पे भी वो ग्रीन सी ग्रोथ हो जाती है. लेकिन कुछ लेक्स और पॉन्ड्स, वो तो ऐसे लगता है कि पूरा कोई घास ही जैसे है, दूर से देखो कि ग्रीन सा ये क्या है. बट व्हेन यू गो नियर इट, इट्स अ एल्गी. और वो एल्गी का नाम क्या है? स्पायरोगायरा. ओके, तो एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप की है? फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? टुकड़ा कट जाना वहां से. जैसे ये हमारी पूरा एल्गी है, दिस हैज अ स्पायरोगायरा, इसका नाम है. ओके, स्पायरोगायरा हैज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर. जैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऐसे है, एक के बाद एक सेल. तो ये सेल अगर यहां से कट गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये 2 सेल्स में बन जाएगा. मतलब ये, और उसके बाद आगे मल्टीप्लाई होता जाए. ये 3 से 6 बने, 6 से आगे मतलब मल्टीप्लाई होते जाए. सो स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स, उसको क्या कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए. दिस इज द एल्गी, और इसका नाम क्या है इस एल्गी का? स्पायरोगायरा. इसका नाम क्या है? स्पायरोगायरा. सो दिस इज द एल्गी. व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, अब उनको भोजन तो चाहिए, ठीक है, तो when water and nutrients they are available, algae grow and multiply rapidly by, ये पता होना चाहिए. जैसे yeast में budding होती है तो algae में fragmentation होती है. And algae breaks up into 2 or more fragments, वहां से ऐसे break करती जाएगी, and these fragments or pieces they grow into the new individual. And this process continues and they cover a large area in a very short period of time. They cover a large area in very short period of time.
जैसे ये एक सेल है, ये किस में डिवाइड हो गया, 2 सेल्स में। तो यहाँ पे आप चाहे एक सेल पहले दिखा दो और उसके बाद इसका बता दो कि यहाँ पे एक यहाँ सेल बन गया, एक यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये मेरा पेन जो है उसकी खत्म हो रही है, ये एक यहाँ बन गया और ये यहाँ सेल बन गया। वो आगे और डिवाइड होते जाएंगे और क्या होगा कि पूरा का पूरा जो पॉन्ड है या लेक है वो क्या होगा, वो ग्रीन से स्लाइमी एल्गी या स्पाइरोकाइना के साथ भर जाएगा। तो आप लोगों ने 3 टाइप कर ली। अब एक टाइप और आपको बतानी है, दैट इज अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द asexual reproduction, that is the spore formation. This is the 4th one. Okay, you must have seen कि अगर ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर कुछ ग्रीनिश ग्रीनिश से पैचेस बन जाते हैं, देखे है ना। तो हम कहते हैं कि तो ब्रेड खराब होगी, इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो तो वो ग्रीन पैचेस क्या हैं, वो ग्रीन पैचेस ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ये फंजाई, उसके ऊपर फंगस लग गई, हम कहते हैं कि ये ब्रेड जो है थ्रो इट अवे, इसके ऊपर फंगस लग गई है। तो फंगस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये आपको ये दिखा रही हूँ, ऐसे करके जैसे ब्रांचेस होती है ना, मतलब रूट्स होती हैं, उसी टाइप की ही यहाँ पे फैलती जाएंगी। ओके, और वो उनको हाइफी बोलते हैं। उसके ऊपर ऐसे करके ये आउटग्रोथ होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो डंडी सी है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बताई आपको। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि फंजाई जो है वो स्पोर्स से ग्रो करती है। और कहाँ पे है वो स्पोर्स, एयर में है। ओके, व्हेन स्पोर्स दे आर रिलीज्ड दे गेट फ्लोटेड इन एयर, वो हवा में इधर उधर, क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं, स्पोर्स बहुत लाइट है, इसलिए वो क्या करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाते हैं हवा के साथ या पानी के साथ, किसी के साथ भी, हवा के साथ वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाएंगे। एंड स्पोर्स दे आर द asexual reproductive bodies। ये आपने याद रखना है कि स्पोर्स आर asexual reproductive bodies। ईच स्पोर, अगर हम स्पोर की स्ट्रक्चर पढ़ें तो स्पोर क्या है, स्पोर दैट इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कवर। अब ये स्पोरेंजियोफोर जब ये ऐसे फट जाएगा तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्पोर्स हैं, और वो स्पोर्स इधर उधर उड़ जाएंगे। ठीक है, स्पोर की स्ट्रक्चर क्या होती है कि इट हैज द हार्ड कोट जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर है। हार्ड प्रोटेक्टिव कोट किस लिए, टू विथस्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशंस। वो अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है, तो क्या होगा कि वो अपने आप को कवर्ड ही रखेंगे, किसके साथ, उस कोट के साथ वो कवर्ड ही रखेंगे। ओके, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी उनको लगेगा कि अब टेम्परेचर कम हो गया है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है, और स्पोर्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड दे विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये मैंने आपको बताया कि ये फंजाई की ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी स्पोर फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होती है, और आप लोगों ने हिली एरियाज में गए होंगे, वहां पे फर्न्स या मॉसेस नजर आते हैं, तो वो भी, उनमें भी जर्मिनेशन जो है वो थ्रू स्पोर्स होती है। सो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट budding,
सेकेंड टाइप, फर्स्ट तो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर लिया था, सेकेंड इज बडिंग, देन थर्ड वन हमने फ्रेगमेंटेशन करा। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? एल्गी में, स्पायरोगैरा, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। और फोर्थ वन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन, जो कि मॉसेस, फंजाई एंड फर्न्स में होता है। सो विद दिस my topic asexual reproduction that is finished. I will come in the next video and take up sexual reproduction. Till then, thank you very much.